Hello students. So today we are going to start Kelvin cycle. Okay. This cycle was discovered by Melvin Kelvin, and why this cycle is also known as C3 cycle, because in this cycle the first stable product here, this is RUBP. RUBP is a 5 कार्बन कंपाउंड, मतलब इसके अंदर 5 कार्बन्स होते हैं. ओके, RUBP इज राइब्यूलोज 1,5 बाई फॉस्फेट. सो इसके अंदर 5 कार्बन है. व्हेन it react with carbon dioxide and water in the presence of Rubisco enzyme. In unit cell, you have studied about Rubisco enzyme. When the concentration of CO2 is more, then it help in carboxylation, and when the level of oxygen is high in the atmosphere, then it act as it help in oxygenation. So here we are studying about the photosynthesis. So CO2 की concentration ज़्यादा है यहाँ पे, तो it will act as carboxylation. Okay, now RUBP will combine with carbon dioxide, and in the reaction of photosynthesis हमने हमेशा पढ़ा है कि 6 CO2 plus H2O के 12 molecules. So here also if it has 5 carbon, then one molecule of this has 5 carbon, then here we can write 6 molecules of RUBP, 6 of carbon dioxide. They will give rise to carbon 6 carbon intermediate, okay, which is a very short lived compound, and after that 3 phosphoglyceric acid is formed. 3 phosphoglyceric acid means कि the name of the compound which is formed is 3 phosphoglyceric acid, and this 3 phosphoglyceric acid has 3 carbon in each. So it means from one RUBP 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid will formed. Okay, from one RUBP 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid will form, because phosphoglyceric acid के अंदर 3 कार्बन है. Okay, now from 6 molecules 12 molecule of 3 PGA will form. Okay, now this process is called carboxylation. Carboxylation का means the fixation of carbon dioxide is called carboxylation. Now from here the reduction starts. Reduction means the formation of sugar. Okay, so first of all what happen, ATP will reduce to ADP in the presence of enzyme kinase. जहाँ भी हम ATP जब ADP में कन्वर्ट हो रहा है, then we will write enzyme kinase. You can write kinase where the ATP get reduced into ADP. Now this 3 phosphoglyceric acid will convert into 1,3-diphosphoglyceric acid, because one phosphate is released here. ट्राईफॉस्फेट से क्या बन गया, डाइफॉस्फेट. सो वन फॉस्फेट इज एडेड हियर. ओके, सो इट बिकम 1,3-diphosphoglyceric acid. After this, next step is the NADPH plus H positive. They will convert into NADP positive and H3PO4, because हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH बनते हैं, एंड इन डार्क रिएक्शन NADPH and ATP are used. बट NADPH यूज होगा, कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड. ओके, नाउ आफ्टर दैट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस चेंज्ड and it will become 3-phosphoglyceraldehyde. What it become? 3-phosphoglyceraldehyde. Again here also 12 molecule बनेंगे इसके, यहाँ पर भी 12 molecule बनेंगे. अब क्या होगा 12 molecule से, what happen, इनमें से 5 molecules जो हैं उससे बन जाएगा DHAP. DHAP is डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. इसके अंदर भी 3 कार्बन ही होते हैं. इसमें से 5 मॉलिक्यूल बन जाएंगे DHAP के. नाउ DHAP का नेक्स्ट क्या होगा, DHAP के 3 मॉलिक्यूल इधर से
3 molecules of DHAP. Out of 5, 3 molecules of DHAP will combine with 3 molecules of PgAl from here. Okay, so how many are left? 4 molecules of PgAl are left. ओके 5 तो यहाँ यूज हुए और 3 यहाँ यूज हो गए, तो 4 मॉलिक्यूल्स बच गए PgAl के. क्लियर? देन व्हाट विल हैपन? 3 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन इसमें है. सो व्हाट विल फॉर्म? कोई भी हेक्सोज मॉलिक्यूल बनेगा, तो फ्रक्टोज 6 डाइफॉस्फेट विल फॉर्म. 1,6 डाइफॉस्फेट मीन्स 2 पोजीशंस है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आपका लगा हुआ है. इसके अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन. और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे. ठीक. नाउ व्हाट विल हैपन? 1 फॉस्फेट इज रिलीज्ड. ओके, जहाँ पे फॉस्फेट रिलीज होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं एंजाइम फॉस्फेटेज. ओके, सो व्हाट विल फॉर्म? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ओके, 1 molecule of phosphate is there, so fructose 6 phosphate. Now again 1 phosphate again is removed and it will form fructose. Fructose is the sugar. Okay, now तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन है वो खत्म हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज द रीजनरेशन ऑफ RuBP इज मस्ट. अगर RuBP रीजनरेट नहीं करेगा तो क्या होगा? ये जो साइकिल है ये स्टॉप कर जाएगी यहाँ पे. सो फॉर द रीजनरेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रीजनरेशन. हियर रिडक्शन टेक प्लेस. यहाँ से यहाँ तक क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स हुआ, कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन टेक प्लेस. अब क्या होगा? रीजनरेशन. किसका? RuBP का. ओके, नाउ अब ये भी 3 मॉलिक्यूल्स बने. अब इसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनेगा. किसका? फ्रक्टोज का. ओके, अब इसमें से कितने बच गए? 2 बचे, 2 बच गए ना. अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसमें से 1 मॉलिक्यूल विल चेंज इनटू फ्रक्टोज, 2 आर लेफ्ट. सो दीज 2 विल कंबाइन विथ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl. ओके, तो इसमें 3 है कार्बन, इधर 6 कार्बन है, तो हाउ मेनी कार्बन? टोटल 9. तो 4 कार्बन कंपाउंड इज दिस एंड 5 कार्बन कंपाउंड इज दिस. मीन्स ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर 5 कार्बन है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के अंदर 4 कार्बन है, एंड दो मॉलिक्यूल इसके बनेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल्स विल बी ऑफ दिस. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन गए. ओके, नाउ अब इसमें 4 कार्बन है एंड 2 मॉलिक्यूल्स है इसके. नाउ व्हाट हैपन? DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर जो हमारे 3 मॉलिक्यूल्स थे वो यूज हो चुके थे एंड 2 आर लेफ्ट. So 2 molecules of this and 2 molecules of DHAP will combine. 4 plus 3, 4 carbon in erythrose, 3 carbon in DHAP. They will form the compound which has 7 carbon. How many carbon? Pseudohaptulose. Hap means होता है 7. 1,7 डाइफॉस्फेट. 2 पोजिशंस पे फॉस्फेट है, so it is called 1,7 डाइफॉस्फेट. Okay, now what happen? Again phosphate is removed. Which enzyme will use? Phosphatase. Okay, phosphatase enzyme will use here and 1 phosphate group is removed, so it will form pseudohaptulose 7 phosphate. Okay, now अब देखो 5 कार्बन 5 मॉलिक्यूल्स PgAl के यहाँ यूज हो गए, 3 इधर यूज हो गए. हाँ, और हमारे 2 यहाँ पर यूज हो गए हैं. ठीक है, सो क्या हुआ? अब हमारे 2 मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो लेफ्ट. सो 2 मॉलिक्यूल्स इसके बने, हम लिख लेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल्स इसके बने. व्हाट हैपन? सीडोहेप्टुलोज के साथ 2 मॉलिक्यूल जो इसके बच गए, दे विल कंबाइन, दे विल फॉर्म. व्हाट दे विल फॉर्म? 7 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन इसमें है, 7 + 3 10. सो कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे हमारे 7 कार्बन बैलेंस्ड रहे. ओके, तो सीडोहेप्टुलोज जो है वो यहाँ पे क्या बनाएगा? राइबुलोज 5 फॉस्फेट. क्या बना? राइबुलोज बाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट. इसमें भी 5 कार्बन है और इसमें भी 5 कार्बन है. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन?
two molecules of this ribose 5-phosphate will change in the ribulose 5-phosphate, और ribulose biphosphate ना ribose 5-phosphate का isomer है, so in this isomerase enzyme is used. Okay, now here also this xylulose, अब कितने molecule हो गए xylulose के? 4 + 4 सॉरी 2 + 2 4 मॉलिक्यूल्स इसके, 2 मॉलिक्यूल्स इसके, सब मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? राइबुलोज 5-फॉस्फेट में. अब हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? RUBP इज द राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट. ओके, तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें एक और फॉस्फेट ग्रुप की. सो व्हाट विल हैपन? ATP जब ATP में कन्वर्ट होगा तो काइनेज एंजाइम में की प्रेजेंस में एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, एंड इन दिस वे RUBP इज रीजनरेटेड. 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से राइबुलोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ से 4, टोटल कितने हो गए? 6 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं. एंड हियर ऑल्सो आइसोमरेज एंजाइम इज यूज्ड बिकॉज PGAL एंड DHAP क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है. ओके, एंड वन मोर थिंग विच वी वर डिस्कसिंग दैट वाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल, बिकॉज इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल. थैंक यू चिल्ड्रन.